Hello, my dear students. Welcome to the class once again, wherein today we will be studying or carrying forward rather the remaining part of the story Ranga's Marriage by Masti Venkatesh Iyengar. Now, I've already told you that the story is all about this boy, the main character, Ranga's marriage, and we had discovered how beautifully, the narrator flaunts about his village, Hosaha Ali, and then we come to know that he gives us the detail and he stresses on the fact that Ranga happened to be the first boy from the village to go to Bangalore for higher studies. Okay, and of course he stresses on the fact that English as a language was a priceless commodity, and but that was a decade ago. Presently the situation is not the same. In the present time, he says that you come across boys and girls, the youngsters of their village, talking in English, because now it's very common for these young boys and girls to go to bigger towns and bigger cities for further education. And then we know that the story goes further, and he disgraces. He uses the word disgraceful. The narrator is not happy with the fact that people used English words in their native language or in their regional language, that was Kannada. And one example was given to us over here. So now from the priceless commodity to the usage of English words, let us see what happens further when we come to know that apparently Ranga has come back to the village, and everybody in the village is super excited because they want to see Ranga, they want to meet Ranga, and they want to know if he is coming after so many days. Has his stay in Bangalore changed him? His way of dressing has changed, his conduct has changed, has his language changed? So there is a lot of curiosity which people want to settle, the villagers want to settle, and that will happen only when they go to the accountant's son. So see here, people rushed to his doorstep. Whose doorstep? The accountant's doorstep, Ranga's home. Okay, announcing, the accountant's son has come. The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here. Let's go and have a look. तो everybody in the village is so excited. सब ये बोले जा रहे हैं कि भाई accountant का जो बेटा है वो वापस आ गया है. The boy who had gone to Bangalore for higher studies has come back. And they are super excited and they are saying, let's go and have a look. सब लोगों को इतना ज़्यादा क्रेज हो रहा है उसको देखने का, as if Ranga has not come from town, but some sort of, some kind of amazing thing has come from somewhere, and they are super excited to see him. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard. So who is the I over here? The I is the narrator. Narrator says, I was also attracted by the crowd, और मैं भी वहाँ जाकर के courtyard में खड़ा हो गया, and asked, why have all these people come? There is no performing monkey here. और narrator ने ऐसे ही बहुत नॉर्मली किसी से पूछा कि अरे भाई इतनी भीड़ क्यों जमा हुई है यहाँ कौन सा कोई बंदर परफॉर्म करने वाला है या कोई बंदर का डांस होने वाला है. सो अब इसका रिप्लाई नरेटर को क्या मिला? अ बॉय, अ फेलो विदाउट ब्रेन्स, ऐसे ही एक लड़का सा कोई खड़ा हुआ था, सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? और इस क्वेश्चन के जवाब में उस लड़के ने नरेटर से कहा कि अगर यहाँ कुछ नहीं होने वाला है तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम भी यहाँ से जाओ. A youngster, अब नरेटर कहता है, he was a youngster, immature and without any manners. He was a youngster, he had no maturity and obviously no manners. So the narrator decided to ignore him and he kept quiet. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. अब Ranga came back from Bangalore और उसका ऐसा वहाँ पे exciting welcome हो रहा है, इतनी भीड़ लगी है, as if Ranga is a star. Okay, so he came out with a smile on his face. Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. Now there were so many people, इतनी भीड़ थी कि अगर सब वहाँ चले जाते, अंदर घर में घुस जाते, तो it would have become
द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. नाउ कहने का मतलब सिर्फ ये है कि लोग बहुत ज़्यादा थे और घर छोटा था. बट फॉर यू टू एनेबल यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द ब्लैक होल ऑफ कैलकटा. ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, माय डियर चिल्ड्रन, it was this dungeon in Fort William, okay, in Bengal. और उसमें क्या हुआ था, डंजन है जहाँ पे आप सब कैदियों वगैरह को बंद कर देते हैं. और इसमें जो बंगाल के नवाब थे, he had held the British prisoners of war. तो if you will Google it, you will get lot of details. So basically a small place where a lot of people stuff in. Thank God इट डिड नॉट, बट थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ. और इंस्टेड के लोग अंदर जाते क्या हुआ, रंगा केम आउट. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. और सब shocked, कह रहे रंगा में तो कोई चेंज ही नहीं आया है, ये तो 6 महीने पहले भी ऐसे ही था और वैसे ही था. When he had first left our village, so everybody was thinking, अरे रंगा पता नहीं क्या हीरो बन के आया होगा वहां से, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. An old lady was near him, और वहीं पे एक बहुत old elderly lady खड़ी थी. She ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, so she ran her hand over his chest और क्या बोली, the Genevra. Now Genevra is जनेऊ, जिसे हम जनेऊ बोलते हैं ना, जो ब्राह्मण्स पहनते, तो कन्नड़ में उसको बोलते हैं जनेवरा. तो वो चेक कर रही थी कि भाई इसने अपना जनेवर पहना है या नहीं पहना है. द जनेवर इज स्टिल देयर, ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट. तो उस ओल्ड लेडी को तसल्ली थी कि ओह चलो, कम से कम धर्म और रिलीजन तो फॉलो कर रहा है, कहीं बाहर जाकर के सभी भूल बैठा होता. She went away soon after that and Ranga laughed. Ranga was laughing because these people, because he was the first boy from that village to go to a big city. तो जो एक्साइटमेंट था, जो क्यूरियोसिटी, वो इतना ज़्यादा इतनी हाई थी that everybody wanted to know. Okay, how does he look? Has he changed? How is he talking? What happens to his culture, his manners? Everything people wanted to check. Once they realized, they कौन? The village people. Please underline. सारी भीड़ रंगा को देखने के लिए आई है. ये है कौन है? Village people. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. And you see the word over here, like. अभी let me explain. Like आते ही मतलब क्या हो जाता है? Simile. क्यों? अभी देखते हैं. अब जैसे इन लोगों ने रियलाइज करा कि भाई रंगा के अंदर तो कोई चेंज नहीं है, वही हाथ हैं, वही पैर हैं, वही आंखें हैं, वही नोज है, तो सारा क्राउड जो है वहां से छट गया, अपने अपने घर चला गया. और किस तरीके से गायब हो गया, इसको कैसे कंपेयर करा नरेटर ने? द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ. कैसे मेल्ट हुआ कि अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल एक शुगर क्यूब रख लीजिए अपने जुबान पे, ग्रेजुअली इट विल मेल्ट, वो मेल्ट हो जाएगा. सो द वे द क्राउड डिसअपियर्ड फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ रंगाज हाउस, इट हैज बीन कंपेयर्ड विद अ लंप ऑफ शुगर, कि जैसे एक लंप ऑफ शुगर गायब हो जाता है इन अ चाइल्ड्स माउथ, ऐसे ही ये सारी भीड़ गायब हो गई. और कब गायब हो गई? जब इनको रंगा के अंदर कुछ भी इंटरेस्टिंग सा नहीं लगा, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं मिला, सो दे डिसअपियर्ड. I continued to stand there. Who is this I? Narrator. After everyone had gone, I asked. अब narrator और रंगा की बातचीत होगी. How are you, Rangappa? Is everything well with you? It was only then that Ranga noticed me. और तभी रंगा ने narrator को notice करा. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, I am all right with your blessings. तभी रंगा ने नरेटर को देखा तो वो उनके पास आया, उसने उनको नमस्कार करा और बोला कि आपकी, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है. द सेम थिंग ही सेड दैट विद योर ब्लेसिंग्स एवरीथिंग इज फाइन. अब देखो नरेटर क्या कहता है. आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर. नरेटर कहता है कि एक चीज मैं आपको रंगा के कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ, और वो क्या है? तो ये है रंगा का कैरेक्टर ट्रेट. आई एम राइटिंग CT ओवर हियर. ठीक है, कैरेक्टर ट्रेट मतलब उसकी कैरेक्टर का हाईलाइट क्या है. ही न्यू when it would be to his advantage to talk to someone. रंगा को बहुत अच्छे से पता था कब किससे कैसे बात करनी है. And
राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ। और रंगा की एक और बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि रंगा लोगों को बिल्कुल सही तरीके से उनकी वर्थ के हिसाब से ट्रीट करता था। ठीक है, ही वॉज, दैट मीन्स ही वॉज अ वाइज बॉय, अ वाइज चैप ही वॉज। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, अब नरेटर कहता है कि जहां तक नमस्कारा की बात है तो उसने वो नमस्कार कैसे करा। ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, कहता है आजकल की लड़कों की तरह नहीं करा उसने मुझे नमस्ते या नमस्कारा। आजकल के लड़के कैसे करते हैं, विद हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, भाई सिर झुकाना ही नहीं जरूरी समझते। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल विदाउट जॉइंट्स, जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वॉन्ड और अ वॉकिंग स्टिक। और यहाँ पे नरेटर जो है क्रिटिसाइज करता है कि आजकल के जो बच्चे हैं ये बिल्कुल भी किसी का रिगार्ड परहैप्स अच्छे से नहीं करना जानते हैं, अच्छे से नमस्ते नहीं करते हैं। कैसे करते हैं कि बिल्कुल देखो, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, व्हेन वी से फॉर एग्जाम्पल आप किसी को नमस्ते करते हैं, आप सिर झुकाते हैं, है ना, पैर छूते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं तो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग मैम, तो वी काइंड ऑफ बेंड आवर हेड अ लिटिल बिट। तो ये जो सिर झुकाना होता है, दिस इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। अब आप ऐसी बस सीधे खड़े हो गए बिल्कुल पोल की तरह, ओके, एंड अगेन सी देयर कम्स अ लाइन लाइक अ पोल सिमली, बिल्कुल ऐसे एटीट्यूड में खड़े हो गए, ना आपने अपना सर झुकाया ना अपनी वॉइस को पोलाइट करो और ऐसे बोलते बस नमस्ते। ठीक है, एज इफ यू वर अ वॉन्ड और अ वॉकिंग स्टिक। ठीक है, नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, रंगा ने ऐसे भी नहीं करा कि बस हाँ हाथ जोड़ लिए, नहीं, उसने कैसे नमस्कार करा, ही बेंट लो टू टच माई फीट। नरेटर कहता है दैट रंगा बेंट लो टू टच माई फीट, रंगा बाकायदा झुका और उसने क्या करा, उसने नरेटर के पांव छुए। तो दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। ही कुड असेस पीपल्स वर्थ एंड ही न्यू हाउ टू हैंडल पीपल एंड हाउ टू बिहेव विद देम और ट्रीट देम। ये रंगा की स्पेशलिटी थी। अब जब उसने नरेटर के पांव छुए तो अब नरेटर आशीर्वाद तो देगा, तो नरेटर ने क्या कहा, मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट। उसने कहा कि अरे भाई जल्दी तुम्हारी शादी हो, और थोड़ी सी उन लोगों ने बात करी। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज का मतलब जब आप किसी से हाल चाल लेते हैं कि भाई और बताओ कैसा चल रहा है, हाउ आर यू, पढ़ाई कैसी चल रही है, आगे का क्या प्लान है, दीज आर जनरल प्लेजेंट्रीज बेटा, है ना। तो जब ये थोड़ी बहुत बातचीत हो गई तो द नरेटर वेंट अवे। तो ये था रंगाज मीटिंग विद द नरेटर। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, अब उसी आफ्टरनून जब नरेटर रेस्ट कर रहे थे, रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड। रंगा कुछ ऑरेंजेस लेकर के आते हैं नरेटर के लिए। अ जेनरस कंसिडरेट फेलो, तो भाई नरेटर तारीफ करता है कि भाई बड़ा जेनरस लड़का है, बड़ा ध्यान रखने वाला लड़का है। It would be a fine thing to have him marry, settle down and be of service to society, I thought. तो नरेटर के मन में ख्याल आता है इतना अच्छा लड़का है कि अगर मैं इसकी शादी करा दूं, इसे सेटल करा दूं, तो मैं समाज के लिए कितना बढ़िया काम करूंगा। सो इन अ वे दैट आवर नरेटर इज थिंकिंग कि रंगा इज सच अ गुड बॉय, आई शुड गेट हिम मैरिड एंड इट विल बी लाइक अ सर्विस टू द सोसाइटी। For a while we talked about this and that. Then I came to the point. थोड़ी देर तो नरेटर और रंगा पे ऐसी बात करते रहे, फिर नरेटर पॉइंट पे आए और उन्होंने क्या कहा, When do you plan to get married? तो वो पूछने की अरे भाई क्या प्लान है, शादी कब करनी है। नरेटर ने पूछा किससे, रंगा से। रंगा ने क्या जवाब दिया, I am not going to get married now, he said. And narrator said, why not? So children, for you I am writing R over here and N over here. R for Ranga and N for narrator. तो कहता है रंगा ने बोला I am not going to get married now, मुझे नहीं करनी अभी शादी। Why not? अब देखो भाई रंगा का व्यू पॉइंट हमें पता लगता है कि what are Ranga's thought about marriage, और ये अब हमको बहुत ध्यान से समझना है। I need to find the right girl. कहता है भाई मुझे अपने लिए बिल्कुल सही लड़की ढूंढनी है। I know an officer who got married only 6 months ago. कहता है मैं एक ऐसे ऑफिसर को जानता हूँ, अभी 6 महीने पहले उनकी शादी हुई है। He is about 30 and his wife is 25, I am told. They will be able to talk lovingly to each other. तो कहता है देखिए मैं अभी अपने सर्कल में एक ऑफिसर को जानता हूँ,
वो तो 30 ईयर्स के हैं और उनकी वाइफ जो है शी इज़ अबाउट 25, ऐसा मुझे बताया गया। तो कहता है कि क्योंकि वो दोनों इतने मैच्योर हैं, द गर्ल इज़ 25, शी इज़ ग्रोन अप, शी इज़ वाइज, शी इज़ मैच्योर, और वो ऑफिसर भी 30 ईयर्स का है, सो दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। सो बेसिकली व्हाट इज रंगा ट्राइंग टू टेल ओवर हियर, ये टॉक लविंगली टू ईच अदर, और ये जो एज की बात आ रही है ये यहाँ पे क्या हाईलाइट कर रही है, ओनली वन थिंग कॉल्ड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी कम्स विद एज, वी बिकम वाइज, है ना, सो यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। तो वो कहता है अगर दैट मैन वाज 30 एंड द वुमन इज 25, दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, मतलब दे विल अंडरस्टैंड ईच अदर। अब रंगा एक एग्जाम्पल देता है, लेट्स से, कहता है अच्छा मानिए, एक बात मानिए, आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि मेरी किसी बहुत ही यंग लड़की से शादी करा दी, क्योंकि चिल्ड्रन यू नो पहले ऐसा होता था कि मैरिजेस बहुत जल्दी करा दी जाती थी, वेरी वेरी अर्ली, ओके, एंड डोंट फॉरगेट कि बाल विवाह तो हमारे यहाँ प्रथा थी ही। तो वो कहता है लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, तो कहता है कंफ्यूजन हो सकता है, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, कहता है वो समझ ही नहीं पाएगी, हो सकता है मैं उससे प्यार से बात करूं और उसे लगे कि मैं उसे गुस्सा कर रहा हूं। तो दिस इज नथिंग बट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उस अंडरस्टैंडिंग को वो कहता है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये मेच्योरिटी के साथ बहुत अच्छी हो जाती है, एंड मेच्योरिटी कम्स व्हेन इट कम्स विद एज। अब एक और एग्जाम्पल देता है रंगा, रिसेंटली a troupe in Bangalore, troupe मतलब a group of people, dancers, stage artists, actors and actresses. Recently a troupe in Bangalore staged the play शकुंतला, कहता है अभी बैंगलोर में एक ट्रूप है, उन्होंने शकुंतला पे प्ले स्टेज करा। अब यू ऑल नो शकुंतला इज अ वेरी फेमस प्ले रिटन बाय कालिदास, है ना। अब उसका क्या एग्जाम्पल देता है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत, दुष्यंत वॉज द किंग ऑफ हस्तिनापुर, falling in love with Shakuntala if she were young like the present day brides, is there? तो कहता है शकुंतला मैंने प्ले देखा और उससे मैंने ये देखा कि दुष्यंत कभी भी शकुंतला से प्यार नहीं कर सकता था, शकुंतला के साथ ही would have never fallen in love अगर शकुंतला आज की तरीके की ब्राइड्स की तरह होती या आज की तरीके की गर्ल्स की तरह होती, एज इन वेरी वेरी यंग एंड इमेच्योर। तो बोलता है व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले, तो कहता सोचो क्या होता कालिदास के प्ले का, इफ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर, एंड आई हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दिस लाइन। ये है रंगा का थॉट, ये है उसका विजन, उसका व्यू कि आपको उस लड़की से शादी करनी चाहिए जो कैसी हो, जो मैच्योर हो, समझदार हो, है ना, and that maturity comes with age. Otherwise, one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. तो कहता है otherwise तो भैया बैचलर रहो, कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की, क्योंकि शादी उसी से करनी चाहिए जो मैच्योर हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो चीज़ों को समझ सके। एक इमेच्योर से शादी करके कोई फ़ायदा नहीं है। Is there any other reason? अब नरेटर पूछते हैं यहाँ पे कि भाई यही एक रीजन है या कोई और भी रीजन है, आई एम राइटिंग एन ओवर हियर। तो रंगा बोलता है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया रंगा का जवाब, बोलता है हाँ एक और रीजन है कि एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए या एक लड़के को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसको वो बहुत एडमायर करता हो, उसको अप्रिशिएट करता हो, उसे लाइक करता हो। अब वो क्या कहता है, What we have now are arranged marriages, कहता अब हम लोगों के यहाँ तो अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, और अरेंज्ड मैरिजेस में क्या होता है, लड़का कुछ एज का होगा तो लड़की बहुत ही कम एज की होगी। तो वो क्या बोलता है, हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ अ फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। सो बेटा प्लीज अंडरस्टैंड दीज 3 एग्जाम्पल्स के मिल्क स्टेन्स, wetness and bite fingers, these are just examples of a very very young age. Ideally तो ये बिल्कुल ऐसा समझ लें कि बिल्कुल बचपने की हैं, कि कोई बहुत ही छोटा बच्चा, कि किसी ऐसी लड़की को आप कैसे एडमायर कर सकते हैं
कि जिसके एक तरफ तो मिल्क स्टेन्स लगे हों कि दूध पीने के बाद उसने अपना मुंह साफ नहीं करा हो, एक तरफ उसके वेटनेस हो, परहैप्स में भी ड्रूलिंग की वजह से, है ना, या वो इतनी छोटी हो जिसे कि अपनी फिंगर्स भी बाइट करनी ना आती हो. सो दीज आर लाइक एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी वेरी यंग एज. So generally these things are done by infants or very young babies who would have stains on their face, who would keep drooling or who would keep sucking their fingers. They would not know how to bite them. So these are just examples of that. और आगे वो कहता है one a neem fruit, the other a bitter gourd. और देखो कैसे कंपेयर करता है. कहता है एक तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे नीम का फल, और दूसरा कैसे हो गया, बिटर गॉर्ड. बिटर गॉर्ड क्या होता है, करेला. तो नीम का फ्रूट भी कड़वा और बिटर गॉर्ड भी करेला, ठीक, वो भी कड़वा. तो ये दोनों ही केसेस में रिजल्ट कैसा है, कड़वा, बेकार, बिटर, पॉइंटलेस. एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग. तो जब नरेटर बोला कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, एक तो नीम फ्रूट हो गया और एक तो बिटर गॉर्ड हो गया, तो रंगा बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. अब रंगा चला गया वहां से. आई वॉज डिस्ट्रेस. नाउ द नरेटर इज डिस्टर्ब. नरेटर को लगा यार ये कैसे थॉट्स हैं इस लड़के के. आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर. नाउ द नरेटर इज वरिड. कह रहा है भाई मैं तो बहुत डिस्ट्रेस हो गया, परेशान हो गया. मुझे लगा इतना अच्छा लड़का है ये एंड ही विल मेक सच अ गुड हस्बैंड, तो इसके तो कुछ आइडियाज ही डिफरेंट है. ही वॉन्ट्स टू रिमेन अ बैचलर. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him married. अब रंगा तो चला गया, बट नरेटर ने इसको बिल्कुल एक चैलेंज की तरह ले लिया. क्या कि I made up my mind right then. तभी there and then the narrator decided I am going to get this boy married. Who is this boy? रंगा. चैप्टर का नाम क्या है, रंगाज मैरिज. तो यहाँ पे जो है हमारे नरेटर ने क्या करा, द नरेटर हैज मेड अप हिज माइंड. ही हैज टेकन अप दिस चैलेंज ऑफ गेटिंग रंगा मैरिड. लेट्स सी अब क्या होता है. नाउ द नरेटर इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कैरेक्टर इन द स्टोरी. मजा आएगा अब. रामा राव's niece, a pretty girl of 11. अब कोई रामा राव हैं विलेज में, उनकी नीस है. शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज 11 years old, had come to stay with him. With whom? With Rama Rao. उनकी नीस थी. She was from a big town, so she knew how to play the veena and harmonium. अब बड़े शहर से आई थी तो उसको वीणा और हारमोनियम दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बजाने आते थे. She also had a sweet voice. Both her parents had died. Whose? This girl's parents. And her uncle कौन है, Rama Rao, had brought her home. Ranga was just the boy for her and she the most suitable bride for him. तो बस जैसे ही नरेटर ने इस लड़की को देखा, उनको लगा कि भाई रंगा के लिए यही लड़की बिल्कुल परफेक्ट है और इस लड़की के लिए रंगा बिल्कुल परफेक्ट है. Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. अब नरेटर रामा राव क्या जाते रहते थे, तो ये जो लड़की थी ये खूब फेमिलियर थी नरेटर के साथ. एंड आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, रत्ना. अब नरेटर तो स्टोरी में हमसे डायरेक्टली बात कर ही रहे हैं, तो बोलते ओहो मैं तो नाम बताना ही भूल गया आपको उसका. हर नेम इज रत्ना. तो रत्ना का इंट्रोडक्शन हुआ है अब इन द स्टोरी. And the narrator feels that Ratna is going to be just the right bride for Ranga. The very next morning, I went to their house. Whose house? Whose house? Rama Rao's house. And told Rama Rao's wife, I'll send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. तो रामा राव की वाइफ को बोला कि भाई मैं आपके लिए बटर मिल्क भेजूंगा. बटर मिल्क क्या होता है बेटा, मट्ठा, ठीक है. आस्क रत्ना टू फेच इट, कि रत्ना को भेजिएगा वो आके ले जाएगी. अब रत्ना घर आई. रत्ना केम. इट वॉज अ फ्राइडे, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी. शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल साड़ी. आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग.
तो नरेटर ने रत्ना को कहा कि भाई बैठो, और उसने रिक्वेस्ट किया कि चलो कोई गाना सुना दो. आई सेंट फॉर रंगा. और इतनी ही देर में चुपचाप से नरेटर ने रंगा को बुलावा भेजा. आई सेंट फॉर रंगा मतलब ही सेंट अ मैसेज टू रंगा कि आपको जो है ये बुला रहे हैं नरेटर. वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज. अब उधर मैसेज भेज दिया रंगा को, इधर रत्ना नरेटर के लिए बैठ के गाना गा रही है. कौन सा? कृष्ण मूर्ति. अब रंगा वहां पे आ गया. दिस इज गोइंग टू गेट एक्साइटिंग चिल्ड्रन. ओके, रंगा रीच द डोर एंड ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड. वो वहीं चौखट पे एकदम रुक गया. ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप. रंगा नहीं चाहता था, वो बहुत प्यारे से गा रही थी रत्ना, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि सिंगिंग रुके. बट वो क्यूरियस था टू सी द सिंगर कि भाई ये गा कौन रहा है, मुझे शक्ल देखनी है इसकी. केयरफुली ही पीप्ड इन. द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड एंड दस रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप्ड. अब जैसे ही दरवाजे पे से खड़े होकर अंदर धीरे से झांका रंगा ने, तो क्या हो गया, वो डोरवे पे जो रोशनी आ रही थी वो रंगा की बॉडी की वजह से वो शैडो आ गया सामने. अब जैसे ही वो लाइट आ गई है, शैडो आ गया है, जो कुछ भी हुआ, तो रत्ना स्टॉप्ड. उसने नजर देखी कि अरे ये कौन स्ट्रेंजर है, और उसने गाना बंद कर दिया. अब रंगा की इस सिचुएशन को, रंगा के इस डिसअपॉइंटमेंट को नरेटर कंपेयर करता है विद द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लूजिंग अ जूसी स्वीट डिलिशियस मैंगो जस्ट व्हेन यू आर अबाउट टू टेक अ बाइट. तो ऐसा कि जैसे वो गाना रुक गया, और ऐसे पॉइंट पे गाना रुका जब बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए था. तो ये एग्जाम्पल है ओके यहाँ पे दैट द नरेटर इज गिविंग. सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, ठीक है, यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील. अब मैंगोज खाते हैं तो पहले क्या करते हैं, एक एक छिलका जो उसका तरता है अच्छे से उसको खाते हैं ना, इससे पहले कि हम पूरे मैंगो में एकदम मंचन करें. सो बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, you do not want to waste any part of it. Before you take another bite, the fruit slips out of your hand and falls to the ground. How do you feel? तो नरेटर कहता है कि सोचो कि आप एक बहुत जूसी मैंगो लेके आए, उसको बड़ी तसल्ली से खा रहे हैं, उसका एक एक पील एंजॉय कर रहे हैं, और जैसे ही आप उसके फ्लैशी और जूसी पार्ट को बाइट करने वाले थे, क्या हुआ, द फ्रूट स्लिप्ड आउट, गिर गया वो फल इमीडिएटली. कैसा लगेगा, कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा, है ना. The same disappointment could be seen on Ranga's face जब रत्ना का गाना बंद हो गया. Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. अब क्या करें, थोड़ा सा awkward situation हो गया. रंगा ने नरेटर से पूछा, You sent for me? क्या आपने मुझे बुलाया था क्या? He asked as he came in and sat on a chair. रत्ना stood at a distance. अब रत्ना उठ के भाई एक डिस्टेंस पे खड़ी हो गई. Her head lowered. और उसको थोड़ा सा शर्म आ रही थी, उसने अपना सिर झुका के रखा. रंगा repeatedly glanced at her. अब रंगा बार बार रत्ना को देखे. Once our eyes met and he looked very embarrassed. अब नरेटर कहता है और एक बार तो मेरी इसके साथ आंखें मिली. किसकी? रंगा के साथ. क्या करते हुए कि he was actually looking at रत्ना. No one spoke for a long while. और भाई कुछ देर के लिए कोई किसी से कुछ नहीं बोला. You know, रंगा was casually enjoying looking at रत्ना. It was my coming in that stopped the singing. Let me leave. अब कुछ ना तो बोलना था. रंगा बोला, ओहो ये मेरे आने की वजह से सिंगिंग स्टॉप हो गई, तो मैं चला जाता हूँ. वर्ड्स, mere words. अब नरेटर कहता है सिर्फ वर्ड्स, कोई उसका जाने वाने का मन नहीं कर रहा था वहां से, ठीक है. द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव. कहा तो जरूर रंगा ने मैं चला जाता हूं, बट उठा नहीं वहां से, राइट. दैट मीन्स दैट ही वॉज सो मच इंटरेस्टेड इन रत्ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और यहाँ पे नरेटर यू नो ही मेक्स फन ऑफ रंगा, you know, and he says, how can one expect words to match actions in these days of कलयुग. तो नरेटर कहता है कि भाई ये तो कलयुग है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कथनी और करनी दोनों
मैच हो जाए कि what you say and what you do it should match. So though Ranga said that I should leave, तो जब उसने कह दिया था I should leave तो फिर लीव करो ना, but no he didn't do it, he was just sitting there. और इतने में क्या हुआ, रत्ना ran inside overcome by shyness. उसको बहुत शर्म आ गई, वो अंदर चली गई. अब थोड़ी देर के बाद रंगा पूछते हैं नरेटर से, हु इज दैट गर्ल स्वामी. और यहाँ पे नरेटर एक स्टोरी का बेटा एग्जाम्पल देता है, ठीक है, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा. हु इज दैट इनसाइड द लायन वांटेड टू नो. तो ये एक स्टोरी है जिसमें एक लायन है और एक गोट है, और वो गोट अंदर टेम्पल में है. तो जब वो लायन पूछता है कि भाई हु इज इनसाइड, तो वो गोट बोलती है कि यू नो आई एम द ही गोट, और मैं ऑलरेडी 9 लायंस को खा चुका हूँ, और तुम बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि अब मैंने 10th लायन को खाने की कसम उठाई है. ये एक स्टोरी है. तो अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है फॉर नरेटर एंड रंगा, जिसमें रंगा तो है लायन, प्लीज नोट डाउन, और ही गोट कौन है, नरेटर. ठीक. हु इज दैट गर्ल स्वामी, हु इज दैट इनसाइड द लायन वांटेड टू नो. लायन कौन है भैया, रंगा. द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड. अब जो ही गोट है वो कौन बना हुआ है, नरेटर. डज इट मैटर हु आई एम, आई एम अ पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस एंड आई हैव वाउड टू ईट 1 मोर. टेल मी आर यू मेल और फीमेल. तो एक तरीके से यहाँ पे ये लाइंस हुई नरेटर के लिए कि मैं वो ही गोट हूं बेसिकली, या मैं वो हूं जो अब तक 9 लड़कों की शादी करा चुका हूं, और अब मैंने कसम खाई है कि 10वें लड़के की शादी कराऊंगा, या लड़के की या लड़के की. तुम बताओ तुम कौन हो, मेल और फीमेल. सो दीज लाइन्स एक्चुअली रेफर टू द नरेटर हु हैज टेकन अ वाव. हमने पिछले पेज पे देखा जब नरेटर ने ये he has taken a vow, he has taken a challenge that I am going to get Ranga married. The lion fled the place in fear it seems. और ये सुन के लायन वहां से भाग गया. ये सिर्फ स्टोरी का, उस स्टोरी का पोर्शन है, मीनिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड. अब यहां से नरेटर एक्चुअली बात कर रहा है इस लाइन से. लाइक द ही गोट आई सेड. तो बिल्कुल ही गोट की तरह नरेटर बोलता है. व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज. नरेटर बोला, अरे भाई हमें क्या फर्क पड़ता है कि ये लड़की कौन है. देखो उसको पता था लड़की कौन है, बट उसने बताया नहीं उसको. क्यों, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है. ही इज चेकिंग हाउ डज रंगा फील अबाउट रत्ना. तो कहता है व्हाट डज इट मैटर टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर्ट द मैरिंग काइंड. तो नरेटर कहता है भाई देख मेरी तो शादी हो चुकी है पहले से, और तुम्हें शादी करनी नहीं है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लड़की कौन है, कहाँ से आई है. And this is so from here onwards, my dear students, the narrator starts building interest in Ranga for Ratna, and you will see how he stages, and how he conspires, and and he does everything that he can to make this union possible. ठीक है. तो यहाँ पे वो ये कह देता है कि भाई क्या फर्क पड़ता है, मुझे शादी करनी नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और तुम्हें करनी नहीं है. तो अब वो लड़की कौन है, क्या है, इट रियली डजंट मैटर. सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप हियर. आई विल नॉट टेक इट फर्दर बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास द लेसन इज गोइंग टू गेट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. ओके, सो टुडेज lesson was pretty simple. We saw Ranga's homecoming. You came to know about the black hole of Calcutta. और रंगा की स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़, उसके गुड मैनर्स, उसके कल्चर के बारे में पता चला. और यहाँ पे बेटा हमें क्या पता लगा, वी केम टू नो अबाउट रंगाज व्यूज़ ऑन मैरिज, दैट ही वॉन्ट्स somebody who's very very mature. And then a new entry came, and that new entry is Ratna. And please don't forget, very very important, Ratna is only 11 years old. और एक और चीज़ ना भूलें, वो ये कि पहले तो उसने कहा था कि लड़की मैच्योर होनी चाहिए, बट एक और हाईलाइट है, आई एम मेकिंग अ स्टार हियर, कि शादी उससे करो भाई जिसको आप बहुत पसंद करते हो. तो एडमिरेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट टू लाइक समबडी एज वेल. सो हियर आई विल रैप इट अप एंड लेट्स सी फर्दर
कि आगे किस तरीके से नरेटर ही बिल्ड्स इन इंटरेस्ट इन द हार्ट ऑफ रंगा, और क्या रंगा एक्चुअली रत्ना को पसंद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. Will they get married? Will something work out or not? This is what we will see in the next class. So till then, I want you to do the revision. If there is any problem, please get back to me. Stay safe and keep doing your work, children. Bye-bye.